Hello, friends. A very warm welcome. And in this session, we are taking up three very important case studies. We will try to see that how, in the limited time and with a positive approach, you can just write fair enough where you can score very good marks. So, starting with the case study, in a metropolitan city of India, the law enforcement authority decided to adopt a facial recognition technology to improve their crime finding capabilities or crime fighting capabilities, I should say. Now, this has been true for India in so many ways, a developing country though it is, but then it has been trying to do so. They also implemented a facial recognition system that integrated with existing surveillance cameras across the city. That is also true for cities like Delhi or even Mumbai, Chennai, Vadodara, and so on. So there is a real-time identification and tracking of individuals. Although tracking of individuals in a prejudiced manner, that is actually illegal. The system was intended to assist in identifying known criminals, missing persons, and suspects in ongoing investigation. That is very true, and that is part of law and order. One evening, a foreman reported a mugging incident where a perpetrator wore a hoodie obscuring most of his face. This is what happens in the US in general. US में ऐसा होता है. The victim provided a vague description to the police, and based on the information, authority decided to use facial recognition technology to locate potential suspects. The system scanned through hours of surveillance footage from various locations near the crime scene. The facial recognition algorithm generated a list of potential matches. Obviously, algorithm आपको बता देता है कि क्या हो सकता है. One individual's image stood out as close match to the description provided by the victim. बिल्कुल पॉसिबल है. एआई इमेज भी आजकल बनने लगी है. 3D इमेजेस भी बनती हैं और उसके बाद पुलिस का काम थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट इज ऑलवेज देयर. Now the police considered this individual as the prime suspect and proceeded with his arrest. Subsequently it was discovered that the arrested person was innocent. अब बीच में बताना चाहिए कि भाई आपने कैसे उसको अरेस्ट किया. ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, उसका इंटरोगेशन होगा और उसके बाद उसके साथ तफ्तीश की जाएगी, तब आप बताएंगे कि उस पर्सन को आप पकड़ सकते हैं. तो कोई बात नहीं, केस स्टडी कह रही है इसलिए हमने मान लिया. Further investigation revealed the facial recognition system had misidentified the innocent individual due to the limitations of technology. अब अचानक आप टेक्नोलॉजी को ही लिमिटेशन में लेके आ रहे हैं, ये बात सत्य है, किंतु ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने जो मुखबिर होते हैं या आप अपने जो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है सबको परे रख के सिर्फ आप एआई और सिर्फ आप टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ऐसा कर रहे हैं, तो केस स्टडी इस मामले में अधूरी है. अब आप कहते हैं कि पुलिस रिलीज द अरेस्टेड इंडिविजुअल. तो अरेस्ट कैसे कर सकते हो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको कस्टडी में भी नहीं ले सकते, उसके लिए भी आपको जुडिशियल परमिशन की आवश्यकता है. तो केस स्टडी यहाँ पर फेल. आप उसको सिर्फ बुला तैयार कर सकते हो, उसके बाद आप पुलिस रिक्वेस्ट करेगी कोर्ट से कि हमें इसकी कस्टडी दी जाए, जुडिशियल कस्टडी दी जाए, हमें इंटीग्रेशन की मोहलत दी जाए. तो यहाँ पर केस स्टडी थोड़ी सी थियोरिटिकल हो गई, थोड़ी सी बेमानी हो गई. अब कह रहे हैं कि स्टिल हिज रेपुटेशन गॉट टैर्निश फॉर लाइफ. तो आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है. आज के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है. यहाँ पर तो बड़े बड़े मोटिवेटर और बड़े बड़े खिलाड़ी बीवी को, पत्नी को मारते हैं, उसके बाद उनका पूरा वीडियो भी आता है. या फिर आजकल ऐसा भी है कि जो है सोसाइटी में कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता आपने किसी एल्डरली पर छोड़ दिया. और यहाँ पर ऐसा भी है कि सीनियर सिटीजन पार्क में बैठे हैं और आपने रोका गया बेटा आप दारू मत पियो, तो आपको थप्पड़ मार दिया सीनियर सिटीजन को. तो जो टारनिश्ड फॉर लाइफ वाला है, ये तो एक आपने आइडियलिस्टिक तरीके से केस स्टडी में बोल दिया. ऐसे हम नहीं मान सकते. एग्जाम जो यूपीएससी एग्जाम की जो केस स्टडी आती हैं, वो केस स्टडी ज़्यादा ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा ठहराव की बात करती है. ही अलॉन्ग विद हिज फैमिली वॉज एविक्टेड फ्रॉम देयर करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस. तो अब हमें तो नहीं पता कि वो क्या वो टेनेंट थे या वो कैसे वो एविक्ट कर दिए गए. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से आपने कह दिया कि उसकी जॉब पर भी असर आया. तो यानी आपने भारत की जो सरकार और भारत की जो न्याय प्रक्रिया है, भारत का जो ऑर्डर है, वो पता नहीं आपने किस कंट्री से मैच करके आपने सारा बना दिया. होती है गड़बड़, नो डाउट, लेकिन हमें और तथ्यों की आवश्यकता थी. और फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज कभी भी आइसोलेशन में नहीं रोल प्ले करती हैं. उनका रोल हमेशा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ है. दे आर इनेबलर. सो लेट्स सी.
इश्यूज क्या है? द न्यूली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम नीड्स टू बी अडॉप्टेड एज एन ऑगमेंटिंग आर्म, बिल्कुल सही कहा, इन द सीसीटीएन टू इम्प्रूव द ईज ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन। ठीक बात है, आपने सिंपल तरीके से बता दिया। ईज ऑफ लिविंग बिल्कुल सही वर्ड है। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इश्यूज इन्वॉल्व कंप्लीट ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी विद पार्शियल इन्फॉर्मेशन ऑफ सस्पेक्ट, बिल्कुल ठीक, पहली बात। फेलियर टू वेरीफाई द ट्रू फैक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल इज इन एल्गोरिदम बेस्ड एंड वर्क्स ऑन कोडेड सॉफ्टवेयर, इससे बायस आ सकता है। इट लैक्स एक्सपर्टीज ऑफ पुलिस पर्सनल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, उसका कोई रूल ही नहीं दिखाया। इरोड्स द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू जस्टिस डिलीवरी, बिल्कुल सही बात है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21, बिल्कुल ठीक बात है। थ्रेट ऑफ सर्वेलेंस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, फेलियर टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। आई थिंक फेयर इनफ, वेरी गुड पॉइंट्स। ये अनबायस तरीके से लिखे गए हैं, जनरल हैं, तो ये एक पर्टिकुलर माइंडसेट को दिखाते हैं। तो मैं इसमें ये नहीं कहना चाहूँगा क्या गलत है, लेकिन ये धीरे धीरे और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और शार्प हो सकते हैं विद ड्यू प्रैक्टिस। मेजर्स क्या हो सकते हैं टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्प्लीकेशंस? तो जे रिबोरियो कमीशन जो आया था, या प्रकाश सिंह की गाइडलाइन जिसको स्मार्ट पुलिसिंग से जोड़ा जाता है, बहुत अच्छी शुरुआत की। इंटरोगेशन ऑफ फॉरेंसिक्स फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इंटीग्रेशन नॉट इंटरोगेशन, इंटीग्रेशन। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में सबसे पहले आए हैं वो। ट्रेनिंग ऑफ पुलिस पर्सनल्स इन एथिकल यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बेस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। आप और सिंपल लिखते, जो आपका कॉन्स्टेबलरी है, जो आपका जो आपका बीट है, बीट, जो पुलिस बीट होती है, दैट मस्ट एक्ट एज ए माइक्रो पुलिस स्टेशन। पुलिस बीट अपने आप में बड़े इकोसिस्टम का छोटा रूप बने। जो आपका नेबरहुड है, नेबरहुड और पुलिस का एक अच्छा रिलेशन हो। आईज एंड ईयर्स जो है आपका नेबरहुड ही होता है, तो वो आपको बताएगा मूंगफली वाला, चाय वाला, जूस वाला, बैटरी रिक्शा, ऐसा नहीं है कि सुनसान है सब कुछ। और आपका सिविक एजेंसीज का रोल हो, वो सारे के सारे जो रोड है, लाइटिंग सिस्टम है, सबको प्रॉपर रखे। और पुलिस ये भी कर सकती है कि लोकल जो सोसाइटी है उसके लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत वो अवेयरनेस एक्सरसाइजेस कराए, ट्रेनिंग प्रोग्राम गर्ल्स के लिए कराया जा सकता है, वुमेन के लिए कराया जा सकता है, ये कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, पुलिस, सर्टन, आईसी फोर, सीबीआई। अब ठीक है, ये हायर लेवल के ऊपर है, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो इसकी जरूरत नहीं है सीबीआई की। लेकिन पुलिस का कोऑर्डिनेशन ह्यूमन, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो ग्रुप्स हैं, उनके साथ जुड़े पुलिस। पुलिस मस्ट बी सीन एज ए सिविल एजेंसी, तो उससे बहुत फर्क आएगा। फेज रोल आउट ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज एंड टेस्टिंग यूजिंग पायलट प्रोजेक्ट्स, नहीं फेशियल रिकॉग्निशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेटा रखा जाए। जो होम मिनिस्ट्री ने अभी हुआ भी है कि दे दे हैव स्टार्टेड विद द डेटा, उनके पास पूरा डेटा नेटवर्क है, जो भी कोई, जो सारे फेसेस का, उसके थ्रू आप जो है पता लगा लेते हैं। आधार का है या वैसे है, उससे पता लग जाता है। देखो, टेक्नोलॉजी शुड बी सीन एज एन एनेबलर एंड नॉट एक एलिमेंट है सर्विस डिलीवरी का। आपने बिल्कुल सही, आपने पिन पॉइंट किया है, बट ओनली पॉइंट इज दैट वेदर विल बी राइट सो मच इन द एग्जामिनेशन विद द गिवन टाइम फ्रेम। अगेन, ये एक अपने आप में बात है। दूसरी बात करते हैं हम रीना और उनके दोस्त। रीना एंड फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज वर वर्किंग इन इंटर्न्स वर्किंग विद द कंपनी फॉर फ्यू मंथ्स ऑन कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप। सम ऑफ देम इंक्लूडिंग रीना ऑफर्ड फुल टाइम जॉब विद द कंपनी। बीइंग a reputed company, she and her friends accepted the offer. Reena is enthusiastic about a new job and even established a good relationship with some of her company co-workers during the internship. However, during her tenure, Reena began to notice that one of the vice presidents of the company was giving her too much attention. Okay, he used to make an extra effort to stop Reena by cubicles by and chat, something he was not doing with anyone of her interns. He even tried to connect with रीना और सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब दो बातें कही गई कि रीना से वो रुक रुक के चैट कर रहा है, तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या रीना ज़्यादा कैपेबल है? क्या रीना ज़्यादा टैलेंटेड हैं? और वो क्यूबिकल के पास, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो क्यूबिकल के पास क्यों रुकेगा? और वो सबके सामने क्यों रुकेगा? वो उसको अपने क्यूबिकल में क्यों ना बुलाएगा? ये एक क्वेश्चन उठता है सीनियर और जूनियर हायरार्की में। अगर वाइस प्रेसिडेंट सबके सामने रीना से बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो, वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है, क्या कह सकते हैं हम कि वो इंथुजियास्टिक हो सकते हैं, गुड नेचर्ड भी हो सकते हैं, हम फर्स्ट पॉइंट में ऐसा हम सोच सकते हैं। ही इवन ट्राई टू कनेक्ट विद रीना और सोशल नेटवर्किंग साइट से, और मतलब बात है, अगर वो कुछ मलेशियस इंटेंशंस हैं तो हम कह नहीं सकते। एंड सम ऑफ आवर को इंटर्न्स आल्सो नोटिस दिस बिगेन एंड टू मेक ऑफ हैंड कमेंट्स टू रीना about extra attention being given by VP.
अब ऐसा अटेंशन क्या दिया गया, या रीना के दोस्त ऑफ हैंड कमेंट ही क्यों कर रहे हैं, इस बात का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया। नाउ दैट शी वाज हैज बीन हायर्ड फॉर फुल टाइम पोजीशन, शी इज fearful that she might have to work with the VP directly. Okay. And while he has not done or said anything explicitly inappropriate, the extra attention and the fact her co-workers noticed it, it made her very uncomfortable and undermined her concentration at work. Possible है, and this is a realistic situation जो बहुत बार हम फेस करते हैं. Company encourages open and friendly atmosphere, and when she was hired, it was communicated to her that she should always speak to her manager whenever she faced any uncomfortable work-related issues. However, she is concerned to speak about it officially as the VP has not explicitly done anything wrong. अब क्वेश्चन उठता है कि भाई डेलिमा जरीना क्या फेस करती है, ऑप्शंस क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। हमें अगर थोड़ा सा, अगर हमें जो है ये एक्स्ट्रा अटेंशन जो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से शब्द है, इसके 50 मतलब निकाले जा सकते हैं। तो हम नहीं जानते हैं फिलहाल कि रीना ज़्यादा चतुर हैं कि वीपी साहब के कुछ इंटेंशंस गलत हैं। हम रोज़मर्रा के वी हैव व्हेन वी हैव कवर्ड इन आवर ट्रेनिंग मॉड्यूल सो मच ऑफ थ्रू न्यूज़पेपर की क्या क्या आदमी सोचता क्या है और निकलता क्या है। एल्डरली तक को 20 साल के जो यूथ हैं वो नहीं बख्शते हैं, और ब्लैकमेल करके उनसे भी लाखों रुपए निकलवा लेते हैं फीमेल के नाम के ऊपर। और दूसरी ओर गुड इंटेंशंस भी हो सकते हैं, तो वी नेवर नो। वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू द की वर्ड की बोला क्या, केस स्टडी जो एग्जामिनेशन में आती हैं वो ज़्यादा क्लियर होती हैं, और वो एक तरीके का साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी क्रिएट करती हैं। तो डेलीमास हैं हर सेफ्टी। अब सेफ्टी आपने कर दिया, जबकि एक्सप्लिसिटली ना तो कुछ बोला गया है, और सोशल मीडिया पे अगर कनेक्ट करने की कोशिश की, ये एक बहुत ही आई रेजिंग पॉइंट है, लेकिन इसको पॉलिटली या इसको ओपनली सॉल्व किया जा सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन ये जो सेफ्टी वर्ड आप ले आए तो ये ज़्यादा हो गया, ये बायसनेस आ गई। परमानेंट जॉब, हर करियर प्रोग्रेशन बात ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ क्वालिटी वर्क अफेक्टेड, को वर्कर प्रेशर, आइडेंटिफाइंग स्पेशल अटेंशन, नथिंग inappropriate being done, टर्किंग मैटर अनऑफिशियली, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, मेंटल पीस। ठीक है, आपने इन्हीं मुद्दों में आपने बात निकालने की कोशिश की। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है वेट एंड वॉच एंड ऑब्जर्व हाउ थिंग्स अनफोल्ड, फ्यूचर एज मेयर सस्पिशन एग्जिस्ट। अभी तो सस्पिशन उसके मन में है, वो भी आप ओपनली नहीं कह सकते, तो इट माइट बी अ फॉल्स सस्पिशन, वेरी ट्रू, करियर इंटरेस्ट आर नॉट हैम्पर्ड, पॉसिबिलिटी थिंग्स वर्जनिंग। वर्जन क्या होंगी? जब वो क्यूबिकल के पास रखकर बात कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक वाइस प्रेसिडेंट इतने मूर्ख हो सकते हैं कि वो अगर वो मतलब जैसा कि हम एक जो हम नेचर से जानते हैं वर्क प्लेस हैरेसमेंट जिसको हम कहते हैं, या फिर हम पॉक्सो की, पॉक्सो तो यहाँ नहीं लागू होगा, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस है, और उसके बाद मेंटल हेल्थ, और जो फीमेल के लिए जो कमिटीज़ होती हैं, आपको लिखना चाहिए कि जो कमेटी है मैं उनसे बात कर सकती हूँ, उनमें कन्फाइड कर सकती हूँ। और शी बॉक्स भी होता है, तो कुछ बातें हम बता सकते हैं। टॉक टू हर मैनेजर ऑप्शन है, मैनेजर्स बेटर अवेयर, वीपी साहब, और रिजॉल्व करेंगे कंसर्न को, बिल्कुल ठीक बात है। डाउट कंटिन्यू रह सकता है, लैक ऑफ सर्टेनिटी, मैनेजर कैसे रिएक्ट करेंगे, प्रोफेशनल वे ऑफ डीलिंग का विदाउट बीइंग हाईलाइटेड, सेल्फ एस्टीम नॉट हैम्पर्ड, बिल्कुल सही पॉइंट है। पोलाइटली एंड हम्बली टॉक टू वीपी ऑन द इशू, बहुत अच्छा पॉइंट है। वर्क प्लेस सेफ्टी एंड डिलीमा प्रायोरिटी है, हैंडल करेंगे, मेंटल पीस आएगा, प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर नहीं होगी, रिमूवल हो सकता है, फॉल्स डिनायल हो सकता है, मे ब्रिंग फॉल्स डिनायल, लॉन्ग टर्म जो है अंडर प्रेशर हो सकते हैं, बात सही है। गोल हाईलाइट द कोर्स ऑफ एक्शन। सो कोर्स ऑफ एक्शन है वेट एंड वॉच फॉर फ्यू डेज, जस्टिफिकेशन है कि विजिलेंट रहेंगे, अगर सस्पिशन बढ़ता है तो मैनेजर से बात कीजिए, और फिर वीपी साहब से वो बात कर सकते हैं। इफ थिंग्स डोंट इम्पोर्ट देन हम्बली टॉक टू वीपी एज नथिंग inappropriate happened but will share the discomfort and work environment, if situation continues देन आप जो है फॉर्मल कंप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें ये भी है कि ये इंटर्न है, और ये फुल जॉब में हायर हो रही हैं, तो वर्क इन्वायरमेंट जो हम प्रोग्रेसिव वर्क इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर जहाँ हम जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आउट ऑफ इंथुजियाज्म, आउट ऑफ प्रोग्रेस कंसर्न भी बिल्कुल हो सकता है, तो वो एंगल भी आपको लेके चलना पड़ेगा। आप अचानक से ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव माइंडसेट से बात नहीं कर सकते। कमिंग टू द थर्ड वन, हम देखते हैं कि you have been recently posted as nodal education officer in one of the districts where mass cheating in examination is a regular phenomenon. Okay. मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि पेरेंट्स जो हैं उसके दीवार कूद जाते हैं स्कूल की, और आंसर चिट पास करते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इस डिस्ट्रिक्ट में। मोर ओवर विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज, चीटिंग इन एग्जामिनेशन बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, और एग्जाम रूल्स को तोड़ा जाता है, जैसा कि अभी हमने बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह हमने ऐसा देखा है।
On investigation, it has been found that these rackets are run by many school authorities. एग्जाम इन्विजिलेटर ही खुद करते हैं, टीचर्स होते हैं और वो हैंड इन ग्लोव करते हैं प्रॉफिट के लिए। स्टाफ शॉर्टेज होता है, इन्विजिलेटर्स मास स्ट्राइक पे जाने की धमकी देते हैं, एंड कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। Cancelling on account of cheating and having re-examination is loss of time, money, and obviously for the government system, vicious cycle goes on. It is very very difficult. इश्यूज, एथिकल इश्यूज क्या हैं, कैसे रिजॉल्व करेंगे, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। So Public Examination Act 2024 aims to conduct the examination in a fair and transparent manner to uphold merit, crucial for human resource formation and quality growth. ठीक है, और इंट्रोडक्शन इज फेयर इनफ। एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व है, पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स, रिस्टोरिंग फेथ इन स्कूलिंग सिस्टम वर्सेस फेयर एग्जाम कंडक्टेड ऑन टाइम, अवॉइडिंग स्ट्राइक बाई स्टाफ वर्सेस सेटिंग ए प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर। ये दूसरा पॉइंट ज़्यादा अच्छा हो सकता था सेकंड पॉइंट में, सेकंड हाफ की प्रेसिडेंट की जगह मतलब एक पूरा इकोसिस्टम ही क्रिएट होना चाहिए, जो राधा कृष्णन कमेटी या कोई कमेटी, पहले की हम स्कूल कमेटी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का आप यहाँ पे बात लिख सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन स्टैंडर्ड फॉलोड वाइल अपहोल्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्कूल अथॉरिटीज एंड चिल्ड्रन, द स्कूल फंक्शनिंग इज नॉट डिस्टर्ब्ड। बिल्कुल सही कहा आपने, चिल्ड्रन फ्यूचर के लिए। हाउ विल यू रिजॉल्व द इशू इन द गिवन केस, शॉर्ट रन में सर्वे किया आपने, कमेटी से आइडेंटिफाई किया मिसकंडक्ट और वायलेशन को, आपने डीओई को साथ लीजिए, और डीओई को साथ लीजिए, पुलिस को साथ लीजिए, और आप इसको फ्लाइंग स्क्वाड बनवाइए और रोकिए। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। स्टेप टू है एग्जाम का रीशेड्यूल होना नेक्स्ट वीकेंड पे, प्रिपेयर एग्जाम सेंटर्स विद इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन केस स्टडी के हिसाब से फिर हमें ऐसा बोलना पड़ेगा। स्टेप थ्री, अरेंजिंग टीचर्स फ्रॉम नियर बाई डिस्ट्रिक्ट टू मेंटेन फेयरनेस ऑफ एग्जाम प्रोसेस एंड नॉट डिले एग्जाम। ये मतलब थ्योरेटिकल है, आपको लिखना चाहिए कि कैसे अ, मतलब जो सेंट्रल बॉडी है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, वो बॉडी जो हमने एनटीए के केस में देखा है या जो हमने बोर्ड एग्जामिनेशन में चीटिंग के केस में देखा, आप उसमें लिखिए कि कैसे इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने की बात करिए, और आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करिए। अरेंजिंग टीचर फ्रॉम नियर बाई डिस्ट्रिक्ट, क्या वो पूरे इम्पार्शियल हैं, वो कैसे आ जाएंगे, मतलब आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, आपको अपने ही सिस्टम में गलती छांट कर उसको ठीक करने की बात करनी पड़ेगी। इंश्योरिंग स्कूल्स आर रजिस्टर्ड, ठीक बात है, नॉट जस्ट रजिस्टर्ड, दे आर फॉलोइंग द नॉर्म्स। मीटिंग द प्रिंसिपल्स टू नो मेरिट जैसे होती है, ग्रेडिंग निकाली जाती है, हर साल बेस्ट स्कूल्स के जो लिस्ट निकलती है वो आपको बात बोलनी चाहिए। मीटिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, सजेशन ऑफ पीरियोडिक रिपोर्ट लेनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग रैंडम एंड सरप्राइज विजिट, ठीक बात है, एक्शन थ्रू इन्वेस्टिगेशंस, मोर अडॉक टीचर्स कैन बी रिक्रूटेड, teachers training and capacity building through Nishtha scheme. Through implementing the Kothari Commission report will be prioritized as stated. The destiny of a nation is shaped in its classroom. बात बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसको हम आई थिंक थोड़ा थर्ड केस स्टडी को हम और ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा यू नो और ज़्यादा हम इसको स्ट्रीमलाइंड और क्लासिकल बना सकते थे। अब हम एक और देखते हैं इन मेट्रोपॉलिटन, सॉरी, अब हम इसको एक बार दोबारा से हम जो सेकंड सेट ऑफ आंसर है उससे हम कंपेयर करते हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो पहला था कि जो हमने बात की थी कि भाई किस तरह से फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का जो क्राइम फाइटिंग कैपेबिलिटीज में जो नहीं कर पाया, उसके ऊपर हमारा पहला केस स्टडी था, तो हम देखते हैं इसको। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम, प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट आपने बात किया, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी हमने भी बात की, लेकिन हमने शुरुआत में ऐसा नहीं बोला। ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मैंने बोला ये होना चाहिए, ये बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ होने के बावजूद भी रॉबिंग और मगिंग है, यानी सोसाइटी में एथिक्स का डाउनफॉल हो रहा है। इनएडिक्वेसी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमने बात की, ठीक है। इनोसेंट गेटिंग पनिश्ड ड्यू टू फॉल आउट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पुलिस, इनोसेंट इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली हैड टू सफर, ये हमने बात बोली, ठीक बात है। फॉल्ट एंड इश्यूज विद पुलिस, ब्लाइंडली बिलीविंग एल्गोरिथम रिजल्ट, ये उनकी गलती है, ड्यू डिलिजेंस उन्होंने नहीं लगाया। प्रेजुडिस इन सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बोला भी था जब मैंने चर्चा की थी पहले अभी, कि नेबर्स जो है वो उन्होंने कुछ नहीं किया या फिर जो है उनका रोल नहीं आया। उसके बाद लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ मेकर्स, की टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटरवेंशन दोनों जुड़ के चले, ये वर्ड बहुत अच्छा है, वो हमने नहीं लिखा। नेगेटिव इंप्लीकेशंस हैं टेक्नोलॉजी के, हमने बात की। अब कर क्या सकते हैं, स्मार्ट पुलिसिंग हमने बात की, सप्लीमेंट की तरह काम करे। एल्गोरिथम बिल्डिंग ऑफ फेशियल टेक्नोलॉजी, सोशली रिस्पॉन्सिबल वर्ड बहुत अच्छा है, और उससे बायस और प्रेजुडिसेस हटने चाहिए। रेज, प्रोग्राम फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबल यूज एआई, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नॉर्म्स बनाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस और एसओपी, हमने भी बात ये की जब मैंने चर्चा की, लेकिन हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जब आपने सीबीआई और वो सारी बात बोली, एकेडमिया सपोर्ट, ठीक बात है। अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन की बात हमने भी करी कि डी स्टिग्मेटाइज हो पुलिस के बारे में, जैसा मैंने बोला कि मोरल पुलिसिंग के अलावा आप जो है कैंपेन्स चलाएं। इसीलिए इन्होंने लास्ट में एग्जांपल दिया कि साधना हल्दर वर्सेस एनसीटी, जुडिशरी स्ट्रेसेस ऑन एथिकल यूसेज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन। ये बात बहुत अच्छी है, एंडिंग बहुत अच्छी है कि एल्गोरिथम चाहिए, एआई चाहिए, लेकिन वो आपका एथिकल नॉर्म की तरफ थोड़ा बेंड किया, तो आंसर हमारा ट्रैक पर जा रहा है, थोड़ा सा उसको और स्मार्टली और इमिडिएटली पुश चाहिए। दूसरा हमारा था जो रीना जी का था। अब रीना जी में विशाखा, देखो इन्होंने पहले ही लिया है, विशाखा गाइडलाइंस की इन्होंने शुरू में बात कर दी कि सेफ और एमिकेबल एटमोसफेयर होना चाहिए वर्क प्लेस के लिए, जो हमने भी बात की। और डिलेमा जो रीना जी फेस कर रही हैं, पर्सनल इंस्टिंक्ट वर्सेस रियलिटी, वही मैंने बात की, कोई सब्सटेंशियल उन्होंने रॉन्ग नहीं किया, वर्बली भी नहीं किया, एक्शन से भी नहीं किया, तो डिलेमा है। तो यानी वो जो मैंने आपसे पहले बोला कि उसकी सोशल और पीयर कंडीशनिंग क्या है, यानी कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल माइंडसेट है क्या, इसीलिए उन्होंने बोला क्या ये वैलिड कंसर्न है। पर्सनल सेफ्टी वर्सेस प्रोफेशनल गोल्स, आपने भी बात की, किसी भी सॉर्ट का एक्शन किसी बेस पे ही लिया जा सकता है, और डिफिकल्ट है वर्क करने का उन्होंने लगता है, बट पर्सनल सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। टू रिमेन साइलेंट और टेक एक्शन, आपने भी ये बात की, सब्सटेंशियल एक्शन अगर आप वीपी के खिलाफ लेते हो तो आपका करियर खराब हो सकता है बिना बात के, क्योंकि आप गलत ले रहे हैं। बिलीव को वर्कर्स और नॉट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। को वर्कर जेलस भी तो हो सकते हैं रीना से, वो जानबूझकर भी ऐसा कर सकते हैं, एंड वो उसको ऐसा बिलीव करा रहे हैं कि आपका आप के साथ देखो बहुत मजा आ गया, अरे वाह ये, तो ऐसा ये एंगल हमने मिस किया। मेरिट पे आपने ही बात की, प्रोफेशनल ग्रोथ की, पर्सनल सेफ्टी की, एसोसिएशन विद वीपी कैन बी यूजफुल, बिल्कुल हो सकता है। पियर्स माइट फाइंड हर अपॉर्चुनिस्टिक, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि एसोसिएशन अगर आप वीपी के साथ रखते तो दूसरे जलेंगे, दूसरों में बायसनेस आएगी, बेटर प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, और फियर और एंजाइटी एक तरफ रह सकता है। तो कंप्लेन करेंगे अगर एचआर से तो उसके मेरिट है, वही जो हमने कहा, हर वेलबींग कुड बी, सेफ्टी कुड बी प्रिजर्व्ड। और वीपी जो है वो जेंटलमैन भी हो सकते हैं, फ्रेंडली पर्सन भी हो सकते हैं, आपने उनको गलत समझा। मेरिट ये है कि वीपी साहब को कॉल्ड आउट किया जाएगा, ऐसे अगर एक्सपीरियंसेस पहले के कलीग के साथ भी हुए तो वही बाहर आ जाएंगे। रीना कैन गो थ्रू टीडियस इन्वेस्टिगेशन, बहुत अच्छा पॉइंट है। वर्क प्लेस सेफर बन सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि टू सेंसिटिव है रीना वर्क करने के लिए, वही रीना की गलती है। रिलेशन विद पीर इंप्रूव भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, और शी कुड फेस रिpercussions ऑल्सो, उसको सस्पेंशन भी दिया जा सकता है। वीपी साहब के साथ अगर आप एमिकेबली कन्फ्रंट करते हैं तो ऑल सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। वीपी को ग्रज हो सकती है उनके खिलाफ, वीपी गेट्स वार्निंग, डिटर्ड इफ हैविंग एनी मलेशियस इंटेंशन। पर्सनल और प्रोफेशनल कैरियर पे फर्क पड़ सकता है रीना के, पीर रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। वीपी का कोई इंटेंशन ही नहीं था, तो वीपी विल बी वेरी कॉशियस, आगे से उनसे वो बात ही नहीं करेंगे। लीव द कंपनी का तीसरा ऑप्शन जो है, सेफर वर्क प्लेस ढूंढिए, एक मेरिट है। लो एंजाइटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक प्रोफेशनल करियर को खो देंगे। तो कोर्स ऑफ एक्शन में देखिए उन्होंने कितना अच्छा चार्ट बनाया, इट्स स्मार्ट वे एंड आई अप्रिशिएट दैट, कि भाई आपने वीपी साहब को कन्फ्रंट किया, डू नॉट पुट एलिगेशन, लेकिन वीपी अगर करते हैं कंटिन्यू सिमिलर बिहेवियर, नो, तो बेटर कोलैबोरेशन विद वीपी। अगर यस, तो मैनेजर से डिस्कस कीजिए, अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो आप हायर अथॉरिटीज या कमेटी को आप बोलिए। तो वुमेन कंटिन्यू टू फेस सिचुएशन सिमिलर टू रीना, बट विद पॉश एक्ट 2013 फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, शी बॉक्स जो मैंने बात भी की थी, उससे वर्क प्लेस थोड़ा सेफर भी बन सकता है। तो दोनों बात को आपको रखना है, जेंटलमैन हैं वीपी साहब, ये एंगल भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। अंतिम केस स्टडी पर आते हुए अगर हम बात करें, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की इन्होंने सीधा चर्चा की, क्योंकि इन्होंने मास चीटिंग की जो बात की थी, इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर शुड बी द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। बट एजुकेशन का सिचुएशन बहुत बुरा है, तो एथिक्स के अंदर आप कोई कोड दे सकते हैं, एथिक्स में आप कोई इमोशनल बात लिख सकते हैं, तो एथिक्स का ज़्यादा वैल्यू आएगा। सोशल वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अपना गोल रियलाइज करना चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी वर्सेस मोरालिटी, नोडल एजुकेशन जो एजुकेशन ऑफिसर है, जो मैंने बोला भी था आपसे कि उनका रोल आएगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का, कैन jeopardize the smooth conduct of exam and waste resources if take action, but without any action morality gets corroded। सही बात है, बहुत अच्छी लाइन बोली कि आप एक्शन लेंगे तो चीजें बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो आप मोरली गलत कर रहे हैं। एंड वर्सेस मीन्स की बात है, कांत ने कहा है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कैन नॉट बी अप्लाइड ड्यू टू लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी एंड मोरल गुड इन द मीन्स इफ नो एक्शन इज टेकन। तो हम एथिक्स के एंगल में फिलोसोफर या फिर कोई किसी फिलॉसफी को लेके आते हैं तो उससे भी हमारा स्कोर बढ़ने के बहुत चांसेस रहते हैं।
और उससे हमारी ऑब्जेक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जैसे कांत है, या फिर आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ला सकते हैं, या फिर आप दलाई लामा तो यहाँ नहीं फिट होंगे, लेकिन आप जो है चाणक्य की बात कर सकते हैं। यहाँ आप तुलसीदास को भी लेके आ सकते हैं, यहाँ आप कबीर को लेके आ सकते हैं, यहाँ आप तिरुवल्लुवर को लेके आ सकते हैं। तो देर आर सो मैनी, आई एम नॉट सेइंग ओनली वेस्टर्न फिलोसफर्स विल बी ब्रिंगिंग है, गांधी जी की बात हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म गोल, इवन अम्बेडकर साहब ने भी एजुकेशन पे बोला है, शॉर्ट टर्म गोल वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल, कंडक्ट ऑफ एग्जाम, फिक्स द सिस्टम विद ट्रांसपेरेंट रिजीम, प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कैसे बचाएं, मेरिट को सेलिब्रेट करा जाना चाहिए, स्मूथ फंक्शनिंग चल जाए स्कूल की, और एथिकल एजुकेशन की बात की जाए। अलाइन विद टीम वर्सेस कंसाइंस, भाई जो चल रहा है उसी में हाथ बांट दें, गंगा धो लें, या फिर हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। एक्शन लेंगे तो टीचर कम्युनिटी उनसे अलग, अपने आप को अलग कर लेगी, बट कंसाइंस की नहीं सुनेंगे तो फिर उसके लॉन्ग टर्म आपकी माइंडसेट, आपकी एंग्जाइटी, आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट आता है। तो इंसेंटिवाइज टीचर्स जो अच्छा काम करते हैं उनको मजबूत बनाइए, उनको तैयार कीजिए। यूज ऑफ सीसीटीवी एंड अदर डिजिटल टूल्स लेके आइए। ऑफिसर लेके आइए दूसरे डिपार्टमेंट से जो कंडक्ट करें, इन्विजिलेट करें एग्जाम, अगर स्कूल टीचर कोऑपरेट नहीं करते हैं। ऑफिसर लेके आने की बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, ना कि बगल के डिस्ट्रिक्ट से टीचर्स को लाने की बात कर रहे हैं। लास्ट रिजॉर्ट में सिविल सोसाइटी और मीडिया में इस बात को हाईलाइट कीजिए कि अनएथिकल बिहेवियर किस प्रकार से चल रहा है। देखिए कितना धीरे धीरे चीजों को उन्होंने पुटअप किया है। हायर मैनेजमेंट से मोर स्टाफ एग्जाम कंडक्ट करने की ट्रांसपेरेंट तरीके से बात कीजिए। मीटिंग विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, उनसे डिस्कस कीजिए। मंथली मीटिंग बनाइए। मन की बात की जगह आप पढ़ाई की बात जैसा कुछ करिए, चर्चा कीजिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में एथिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, टीचर्स को ट्रेन कीजिए निष्ठा की, जैसे आपने ही बात की थी। पारख ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम वो लाइए। कोर इश्यूज जो है वो नीड ऑफ चीटिंग, डिस्कस विद स्टेक होल्डर्स। इंप्रूव एजुकेशन क्वालिटी विद रेगुलर मॉनिटरिंग, प्रपोजल फॉर कंटिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, हमने ही बात की, लेकिन हमने थोड़ा क्लैरिटी से हमें पुट नहीं किया, हमारा थोड़ा वेग था। Hence, in lines with the SDG 5, Gandhiji's ideas are apt, where he says education is not only about literacy, but all-round development of mind, body, and spirit. ये हम कह सकते हैं। Okay, so what ideas you can just share? So in like the area related to the dilemmas, ethical dilemmas, there I would focus more upon like theme-based terms Hmm. related to ethics Mhm. as a subheading and making it some more objective writing with little Summing up, because there is no clarity one where way. There is no one way. hmm, You are able to classify. You are also able to bring the structure. लेकिन उसके अंदर मेच्योरिटी चाहिए, जी और क्लैरिटी चाहिए, और हम्म सिंप्लिसिटी थोड़ी चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो थ्योरेटिकल नहीं चाहिए। आप खुद सोचिए, बात बिल्कुल सही है कि किसी चीज़ को भी बदनाम करना, कोई भी नेगेटिव एक्शन लेना बड़ा आसान होता है। जी जैसा अभी हमने चर्चा भी की थी थोड़ी देर पहले कि यदि किसी के साथ कुछ गलत हुआ, तो आप पूरे सिस्टम को आप ऐसे बोल रहे हैं कि पावर का मिसयूज कर रहा है, और हम्म, क्या समझता है, तो ये अपने आप में ही आपको गलत लेके जा रहा है। जी ये मेजॉरिटी ओपिनियन अगर ऐसा है भी, तो वो सिर्फ लोअर क्लास के पास होगा, वो जो डिप्राइव्ड है उनके पास होगा। सिस्टम ऐसा नहीं मानता। जी सिस्टम को प्रूफ चाहिए। हम्म आपको क्या कहना है दिव्य? सर, केस स्टडी या क्वेश्चन को समझने के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में उनके ऊपर बिल्कुल। क्वेश्चन किया जा सकता है सर। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो वर्ड्स हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपने बोला था कि पुलिस जो है वो सिविल एजेंसी होनी चाहिए, तो बिल्कुल। उस वर्ड्स और ज्यादा ठीक है। सकें। हम आगे बढ़ाते हैं, और इसी दिशा में मोर क्लैरिटी, मोर ऑब्जेक्टिविटी से विल गेट बैक विद मोर आइडियाज। थैंक यू वेरी मच।